Counseling for NEET UG 2025 is going to start soon, and it is very important for you to choose the right medical college, as you are going to spend 5.5 years of your life in that particular college and in that particular city. So today, me and my friends from different medical colleges across Uttar Pradesh will share their review about their own college that will help you prioritize the right medical college for you in the NEET UG counseling. And if you want to know in great detail about any particular medical college in this video, then I will leave a link of detailed review of every college in this video in the description down below. So hello everyone, myself Saksham Chaurasia, a third year MBBS student, and let's start the video starting with IMS BHU, Banaras. Hey everyone, I am Shivansh Malvia, a first year MBBS student at IMS BHU, Banaras. Talking about my college, IMS BHU isn't just any medical college, it's literally one of the most prestigious institutes not just in UP but across all of India. I mean, for so many NEET aspirants, whether UG or PG, this is their dream college. The campus of IMS BHU is something else. It's peaceful, super green, and honestly feels like you're living in the lap of nature. There are so many beautiful and spiritual spots inside the campus itself, like the new Vishwanath Mandir and a bunch of places where you could just go and hang out. Academically, IMS is top notch. We have got some of the best professors, seriously, very experienced and highly qualified, and the teaching quality really shows. Even some of our professors are awarded Padma Puraskar. And the clinical exposure here, it's amazing. The OPD load is more than 6,000 patients per day, which means third and fourth year postings, we get a great clinical exposure. Apart from that, the research culture here is very active. There are always conferences held, people presenting papers, and a lot of encouragement if you are into academics beyond textbooks. Now here's something really important for PG students. IMS BHU is a central university, so it has its own PG reservations. Out of 134 PG seats, 84 are reserved for its own internal students. It means our batch strength is 100, so out of 100, 84 will sure to receive a PG seat. There's no bond here, unlike state colleges. College life here isn't just about books and boards. We celebrate each festival with full energy. And moreover, the Elixir, our annual fest, it's something we all look forward to. So much fun and so much memories. And the most important point, our BHU is a ragging-free campus because our anti-ragging committee is highly active and highly professional in suppressing these notorious activities. So you could roam freely around this campus without any worries. So juniors, we seniors are eagerly waiting for you. But honestly, one of the best things about studying at IMS is Banaras itself. I mean, I don't even have to explain it. It's Banaras, the spiritual capital of India, from the Ganga Ghats and the Mandirs. The peace, the vibe, I feel lucky to be studying here. So I would recommend my juniors to consider IMS BHU as a potential medical college, because this college just not gives you academics but ample opportunities to become a better version of yourself. Hi everyone, myself Aman Singh, a third of MBBS student at KGMU लखनऊ। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने कॉलेज KGMU के बारे में। KGMU जो काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है, काफ़ी सारे बच्चों का सपना है यहाँ पे एडमिशन लेना। KGMU काफ़ी पुराना कॉलेज है आपके यूपी में, है ना, और यूपी में देखा जाए तो फर्स्ट रैंकिंग का कॉलेज KGMU ही है। और ऑल इंडिया देखें तो 350-400 जो आपके कॉलेजेस हैं जितने, तो उसमें टॉप 10 टॉप 15 में KGMU आता है। तो काफ़ी सारे बच्चों का सपना होता है यहाँ पे एडमिशन लेना। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1906 में हुआ था। तो ये कॉलेज 100 साल से ज़्यादा पुराना है, काफ़ी प्रेस्टिजियस रेपुटेशन है कॉलेज का। इसके लैंड एरिया की बात करें तो जो कैंपस है आपका वो 25 एकड़ में है ना। और यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ है कि जो OPD बिल्डिंग्स है, जो इमरजेंसी ट्रॉमा बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें एक साइड है और एक साइड आपके नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है या फिर टीचिंग डिपार्टमेंट या फिर बच्चों के जो हॉस्टल वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें कैंपस में एक ही कैंपस में है और काफ़ी अच्छे से सेपरेटेड है। जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट मतलब कि इधर बच्चों वाले एरिया में नहीं आते हैं, जिधर हॉस्टल्स हैं, लेक्चर थिएटर है, ये सब चीज़ें हैं। और इसका बेनिफिट ये भी है कि आपका जो हॉस्पिटल है, आपका जो कॉलेज है ना, जो आपका टीचिंग ब्लॉक है और जो आपका हॉस्पिटल है वो एक ही कैंपस में है। तो जैसे कि जो पोस्टिंग वगैरह होती है वो सारी की सारी आप एक ही जगह पे, मतलब कि एक ही जगह पे कर सकते हो। ये नहीं है कि हॉस्पिटल के लिए आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना है ना। कोर्सेज की बात करें तो KG में आपका MBBS BDS दोनों हैं। इसके अलावा नर्सिंग पैरामेडिकल्स वाले भी कोर्सेज हैं। MBBS BDS की बात करें तो MBBS में आपके पास टोटल 250 सीट्स हैं। और पेशेंट लोड की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 10,000 पेशेंट का लोड मतलब कि डेली रहता है। एवरेज बेसिस पे OPD में 5 से 6,000
ओपीडी पे लोड रहता है ना। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो पढ़ाई का पूरा सिस्टम है, पूरा मैनेजमेंट है, वो काफ़ी सही है ना। और जो आपके एनएमसी के करिकुलम के हिसाब से जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस के करिकुलम में, वो सारी चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से कवर कराई जाती हैं। उसके बाद पढ़ाई के अलावा यहाँ पे आपके सारे रिलीजियस और नॉन रिलीजियस इवेंट्स कराए जाते हैं, है ना। जो केजी का आपका जो एनुअल फेस्ट होता है वो रैप्सोडी के नाम से होता है। उसमें काफ़ी अच्छा माहौल होता है, काफ़ी अच्छे से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और सरस्वती पूजा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। केजीएमयू के कैंपस में आप देखेंगे एक सरस्वती लॉन है ना, जो वो पूरा ग्राउंड, पूरा एरिया है ना, वहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर है और सरस्वती पूजा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। और जो भी त्यौहार होते हैं वो सारे अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। होली दिवाली पे भी अच्छा सेलिब्रेशन होता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो अपने कॉलेज में एसपी ग्राउंड है, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट है ना, बास्केटबॉल कोर्ट, सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी मतलब कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते रहते हैं। और अलग अलग कॉलेज से भी बच्चे आते हैं, जैसे कि लखनऊ में आपके जो कॉलेज हैं आरएमएल हो गया, या फिर जो और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट में, हिंद मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सारे कॉलेज के बच्चे भी आते रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स इवेंट होते रहते हैं। तो जो बच्चे स्पोर्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग अपना पार्टिसिपेट करते रहते हैं, है ना। हॉस्टल्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से बॉयज हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है ना। बाहर आपको रूम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों हॉस्टल कैंपस के अंदर ही हैं। बॉयज हॉस्टल के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है वो सीबी हॉस्टल के नाम से है, न्यू सीबी हॉस्टल के नाम से। वहाँ पे डबल सीटर रूम रहता है ना। फिर सेकेंड ईयर का हॉस्टल जो है वो टीजी हॉस्टल है, वहाँ पे सिंगल सीटर रूम रहता है। उसके बाद थर्ड ईयर से हम लोग एसपी हॉस्टल में आ जाते हैं। तो करेंटली मैं एसपी हॉस्टल में हूँ और यहाँ पे डबल सीटर रूम है। और हॉस्टल में अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है ना। उसके अलावा हॉस्टल में जिम है। उसके अलावा खाने पीने की सारी व्यवस्था तो रहती है, मेस और कैंटीन सारे हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। तो और उसके अलावा आप आगे जब जाएंगे तो पीजी के हॉस्टल्स हैं कैंपस में, है ना। पीजी वाले हॉस्टल हैं, रेजिडेंट वाले हॉस्टल हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप एडमिशन लेके केजीएमयू में आते हो तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। ये जो आपका केजीएमयू है ये आपका पुराने लखनऊ में आता है ना। इसके अलावा लखनऊ में उधर नया लखनऊ है जो कि यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है ना। तो ये ओल्ड लखनऊ में आता है, जो चौक वाला एरिया है। यहीं पे आपका जो घूमने फिरने वाला प्लेस है, इमाम बाड़ा है पास में, भूल भुलैया है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। फिर नीट का एग्जाम हो गया आपका, तो रिजल्ट वगैरह भी आ गए हैं, तो आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए और केजी आपको मिले, आपके रैंक पे यदि आपको केजीएमयू मिल रहा है तो आप केजीएमयू को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, है ना। बाकी सारी चीज़ें जो चीज़ मुझे बतानी थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे कॉलेज के बारे में, उसका कट ऑफ क्या है और एकेडमिक्स कैसी है, फेस्ट वगैरह होते हैं कि नहीं, स्पोर्ट ग्राउंड कैसा है। तो मेरे कॉलेज का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये यूपी का सेकंड टॉप मेडिकल कॉलेज है। केजीएमयू के बाद जनरली बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में है एंड ऑब्वियसली इट इज एट वेरी प्राइम लोकेशन। आप जब कॉलेज पे आएंगे कैंपस के अगल बगल तो उसके बगल में हाई कोर्ट है, सामने और बहुत सारा प्राइम लोकेशन है। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हमारा कॉलेज है। इसकी वजह से उतना स्पेस यहाँ पर नहीं है, तो जो सब चीज़ें हैं मैक्सिमम बिल्डिंग्स में ही है। एकेडमिक ब्लॉक्स और आपका जो हॉस्पिटल है लगभग 150-200 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसमें बता दूं मैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है हमारे कॉलेज का, क्योंकि लेटेस्ट है तो इसमें पूरा एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम न्यू आर्किटेक्चर है हर एक चीज़ें और काफ़ी बेहतर है। मतलब आप इसका अंदर का पूरा देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है चीज़ें। लेक्चर हॉल्स की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी बेहतरीन से हर एक चीज़, और जो सीटें होती हैं मतलब अदर मेडिकल कॉलेज में जनरली लकड़ी वगैरह की होती हैं, बट यहाँ पर एकदम जैसे थिएटर में आप बैठते हो ना, सेम वही वाली वाइब्स आती है। लैब्स की बात करें तो लैब्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें माइक्रोस्कोप नहीं है या और बहुत सी चीज़, जैसे मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ हमारी ये दिक्कत होती है ना, तो यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल है। और कैडेवर वगैरह की बात करें तो कैडेवर भी सफिशिएंट अवेलेबल होते हैं और डाइसेक्ट करने के भी कुछ बच्चों को दिए जाते हैं। तो ओपीडी की बात करें तो हॉस्पिटल ओपीडी अराउंड 5000 पेशेंट पर डे आते हैं और लगभग हर चीज़ का एक्सपोजर हो जाता है जब आप क्लिनिक्स में जाओगे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पोस्टिंग में। तो जनरली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत सी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में ही देख लोगे, सीख लोगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर सब डॉक्टर्स ही हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं और बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज के, तो काफ़ी एकेडमिक्स की नेक्स्ट लेवल पे है। जब आप बात करेंगे अपने दोस्तों से अदर मेडिकल कॉलेज में, यू रियली अप्रिशिएट इट कि मतलब एकेडमिक्स यहाँ का इतना तगड़ा है कि क्या ही बताया जाए।
बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एकेडमिक्स है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी ऑब्वियसली सेकंड ईयर ऑनवर्ड से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर होता है और फर्स्ट ईयर में कैटेगरी वगैरह होता है, बाकी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी हर एक पोस्टिंग होती है और उसे पोस्टिंग को डिसिप्लिन से फॉलो करवाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बस थियरी में ही होती हैं चीज़ें, बहुत सारी सब कुछ प्रैक्टिकल में होती हैं, हर एक लोग सिखाते भी हैं। आप जो JR SR होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो आपको पोस्टिंग के टाइम पे सिखाते भी हैं चीज़ें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाता है बच्चों के माइंड में कि क्या कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इवेंट्स बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का जो फेस्ट होता है, एस्पिरेंजा होता है, काफ़ी बेहतरीन रहता है। उसमें ग्राउंड ऐसे बात करें तो ग्राउंड RML में नहीं है, लेकिन जब हमारा फेस्ट होता है तो हम ग्राउंड रेंट पे ले लेते हैं आसपास कहीं, तो उससे खेलने कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाकी इंडोर फेस्ट भी होते हैं, फ्रेशर होता है, फिर उसके बाद में फेयरवेल होता है सीनियर्स का, और भी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है फेस्ट। जो 5 दिन कल्चरल का होता है वो तो बहुत ही मज़ेदार होता है सच में। डीजे नाइट में तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट अबाउट RML एंड अबाउट योर लाइफ टू, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ महसूस करने वाले हो और इतने प्राइम लोकेशन पे है तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। Hi everyone, my name is Ayush Joshi. I am a third year MBBS student from JIMS Noida. Our institute was established in 2016 as a proper medical institute, and our first batch of MBBS was started in 2019, which has passed out now. So starting with the campus first, we have a really beautiful campus which is shared with GBU. आपको कैंपस में काफ़ी ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिल जाएंगे जो काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है कैंपस में, तो एक मोर ओवर वाइब बहुत अच्छी रहती है पूरे कैंपस की। आपको यहाँ पे सर्वर मिल जाएगा, मेडिटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, हमारा हॉस्टल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। यू विल फाइंड ऑल द एमिनिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे लाइफ इन द कैंपस इटसेल्फ। आपको यहाँ पे सारे स्टोर्स मिल जाएंगे, स्टेशनरी स्टोर्स हैं, आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ईटरीज मिल जाएगी, बेकरी मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए आपको कैंपस के सराउंडिंग में सब मिल जाएगा, तो आपकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट रहेगी। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो ये 500 एकर्स पे फैला हुआ GBU का कैंपस है जिसे जिम्स भी यूज करता है। और इसमें आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि ऐसी आपको कैंपस फैसिलिटीज बाकी किसी भी और यूपी के कॉलेज में नहीं मिलेंगी। गोइंग अहेड विद द हॉस्पिटल, वी हैव अ रियली गुड पेशेंट फ्लो नाउ। वी हैव अप्रॉक्स अ पेशेंट फ्लो ऑफ 2000 पेशेंट्स पर डे, विच इज कंपेरेबल टू वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। और अगर मैं पेशेंट से बढ़कर बात करूँ हॉस्पिटल के बारे में, तो हमारे पास बहुत सी अदर फैसिलिटीज भी हैं, जैसे हमारे पास अपना MRU है, मेडिकल रिसर्च यूनिट है, हमारे पास अपना मेडिकल इंक्यूबेटर है जहाँ पे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए जाते हैं, हमारी लैब्स बहुत हाईटेक है हॉस्पिटल्स में। सो यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल टू। और आपके पास इतना पेशेंट लोड है कि आप अच्छे से अपनी क्लिनिकल स्किल सीख सकते हैं। एंड मी बीइंग थर्ड ईयर, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम्स में पेशेंट फ्लो की कमी है, कि मुझे कुछ सीखने में कमी हो रही है। इफ वी स्पीक अबाउट academics of gyms, it is really nice and I'll say it is equivalent to KGMA or RML Lucknow, and I'll say we are headily competing with Delhi colleges for academics. हमारे वहाँ सारी फैकल्टी जो है वो दिल्ली कॉलेज की है या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट से आई हुई हैं, और हमारे वहाँ academics को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। यू विल बी फोर्स्ड टू स्टडी। और जो हमारे जितने भी लैब्स हैं, हमारी जितनी भी फैसिलिटीज है, स्किल लैब्स हो गई, वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इफ यू आर सेंट्रिक अबाउट रिसर्च, आई विल से जिम्स इज द बेस्ट कॉलेज इन होल यूपी, बेटर देन KGMA एंड RML इटसेल्फ। हमारे और रिसर्च को इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कि हमारे वहाँ ऑलमोस्ट 50% ऑफ बैच हर साल ICMR के लिए अप्लाई करता है, ICMR STS के लिए। और ICMR STS के अलावा भी हमारे बहुत सारे इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और बहुत से दूसरे कॉलेज के साथ भी कोलैबोरेशंस होते हैं। So if you are into research, you should preferably join gyms. The best sports facilities in whole UP. अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, लॉन टेनिस खेलना है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, आप जिम्स आओ। आपको जिम से बेटर फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ, ये फैसिलिटीज GBU के साथ शेयर्ड है, बट यू कैन यूज देम एज पर योर कन्वीनियंस, और आपको कोई उसमें रोकेगा नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सो इट्स अ बिग रिकमेंडेशन। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आपको जिम्स आना चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सब मेडिकोस के लिए होती है, वो हमारे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता है। एंड जिम्स के हॉस्टल काफी अच्छे हैं। आई वोंट से कि ये RML से अच्छे हैं, बट दे आर सेकंड बेस्ट इन UP। आपको डबल शेयरिंग रूम मिलेगा विच इज क्वाइट स्पेशियस, और आपको पूरा फुल फर्निश रूम मिलता है जिस पर आपको ज्यादा रोक टोक नहीं है। हाँ, वी आर स्ट्रिक्ट कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस, बट आपको हॉस्टल में अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। मेस भी हमारी काफी डिसेंट है। फूड क्वालिटी ऐसा नहीं कि दूसरे कॉलेज की तरह बहुत बुरी हो, बट हॉस्टल में एक प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अलाउड टू इंस्टॉल ACs, तो ये समझ में थोड़ा एक इशू हो जाता है। बाकी हॉस्टल्स आर प्रीटी गुड। हॉस्टल्स में आपको रीडिंग रूम भी मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके आराम से पढ़ सकते हो, एंड रीडिंग रूम्स आर आल्सो इक्विप्ड विद द बुक्स, तो आप वहाँ से बुक्स को रेफर कर सकते हो। सो कंक्लूडिंग माय पार्ट, आई विल से जिम्स इज अ रियली ग्रेट कॉलेज एंड वी आर श्योरली अपकमिंग वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन होल इंडिया। सो अगर आपको जिम्स ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो। जिम्स के अगर मैं प्रोज गिनाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हाँ, मुझे लगता है कि सबको एक कॉन पता होना चाहिए जिम्स का है कि यहाँ फीस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है दूसरे कॉलेजेस से।
आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख पे करना पड़ेगा पर ईयर. सो या इट कैन बी अ डाउन साइड, बट अगर आपके लिए फाइनेंसिस कोई इशू नहीं है तो यू शुड श्योरली चूज जिम्स. और प्रोज की कोई यहाँ लिमिट नहीं है. हमारे स्पोर्ट्स बेटर है, हमारा एकेडमिक्स अच्छा है, हमारी रिसर्च बेटर है. अगर मैं प्रोज गिनाने जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो माय बेस्ट विशेस आर विद द जूनियर्स हु विल बी जॉइनिंग MBBS in 2025. MBBS is holding a lot of surprises for you. Just stay excited. तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयंक यादव, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज. अब आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है, तो आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही चल रहा होगा, कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कॉलेज ना लें, क्या काउंसलिंग करें. तो इस सीरीज में मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को प्रेजेंट करूंगा कि अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो वो अच्छा है, खराब है. ये वीडियो आपका सारी डाउट क्लियर करके रख देगा. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज MLN बहुत ही पॉश एरिया में बना हुआ है, सिविल लाइंस में, जहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ही बेटर है. रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से आप इजीली कॉलेज तक आ जाएंगे. अब आप कॉलेज में आ गए तो पहला काम होता है आपका हॉस्टल में रहना. तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ का फर्स्ट ईयर का हॉस्टल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. वो अलग बात है कि आपको डबल सीटर में रहना पड़ेगा, 2 लोग एक रूम में, बट रूम अच्छे होंगे और फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अच्छा है. लेकिन बाकी सारे ईयर में हॉस्टल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, काफी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, पुअर है, पानी का सुविधा भी नहीं होगा उतना अच्छा, RO भी नहीं लगा हुआ है, और साफ सफाई भी ठीक ठाक ही रहती है. तो हॉस्टल उतने अच्छे नहीं कहूंगा मैं. और बात करते हैं हॉस्पिटल लोड के बारे में. तो इसका जो हॉस्पिटल है अटैच स्वरूप रानी हॉस्पिटल, बहुत लोडेड रहता है, बहुत पेशेंट आते हैं, रिकॉर्ड बना रखा है उसने अपने आप में. बाकी 3 हॉस्पिटल अटैच्ड हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से. एक स्वरूप रानी जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दूसरा मनोहर दास हॉस्पिटल जो कि आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तीसरा हॉस्पिटल है सरोजनी नायडू जो कि स्पेशलिस्ट चाइल्ड के लिए बना हुआ है, इसे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के लिए. तो 3 हॉस्पिटल, तीनों में काफी लोड रहता है. तो पेशेंट के मामले में काफी बढ़िया हॉस्पिटल है इसका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का. तो कोई PG करने के लिए भी सोच रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है MLN. आपका आता है लेक्चर थिएटर. लेक्चर थिएटर भी यहाँ बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे आपको. हालांकि यहाँ पे AC इंस्टॉल्ड की गई है अभी रिसेंटली, पर उसमें कुछ ही AC फंक्शनल है, तो गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है. तो मैं कहूँगा यहाँ के लेक्चर थिएटर भी बहुत एडवांस नहीं है, बहुत ही अच्छे नहीं लगेंगे आपको. फिर उसके बाद कहूँगा मैं कॉलेज का कैंपस. कैंपस अच्छा है, ठीक ठाक है, और हरा भरा है, पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, और रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, वेल मेंटेन्ड रोड है. और यहाँ का जो कॉलेज ग्राउंड है वो भी काफी अच्छा बना हुआ है, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है. बाकी आपको यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये सब देखने को मिल जाएंगे. यहाँ का जो फेस्ट होता है उसे बोलते हैं यूफोरिया, वो भी अच्छा बनाया जाता है. उसमें कोई आपको बहुत मजा आने वाला है उस फेस्ट में भी, क्योंकि हर साल में एक बार होता है. आपको इस सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल मिल जाएगी. आप सर्च करना MBBS मयंक यादव MLN MC मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज. आपको ये सारा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पूरा मैंने कैंपस टूर दिखा रखा है. तो अगर वो आप एक बार देख लेंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा. बाकी बात कर लेंगे एज ए सिटी, प्रयागराज सिटी वो भी काफी अच्छी है, संगम सिटी है, शांत है, यहाँ कुंभ मेला भी होता है, आप जानते हो, अभी रिसेंटली महाकुंभ भी निकला हुआ है. और बाकी सब यहाँ पे कोई अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, तो ये आप देख लेना. बाकी मेरे हिसाब से कॉलेज ठीक है, अगर आपको मन है ले लेना. बाकी 4th रैंक है इसकी उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक. अब आपको एक बार चेक कर लेना. इस कॉलेज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंडेंस में लिबर्टी मिल जाएगा, यानी अटेंडेंस का इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आपको थोड़ा रहम मिल जाएगा अटेंडेंस पे. और जो वर्स्ट पार्ट लगा है वो यही लगा कि यहाँ का LT और हॉस्टल उतने अच्छे नहीं हैं, तो जहाँ आप रहते हो पढ़ते हो वही अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है. बाकी ऑल ओवर कॉलेज इज गुड एंड आप इसे ले सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. लाइक कर देना वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण तिवारी, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर. तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा BRD मेडिकल कॉलेज क्यों यूनिक है और क्या इसकी स्पेशल चीज़ है. तो यहाँ MBBS की 150 सीटें हैं इनटेक की, और 3 UG के हॉस्टल हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. और यहाँ की एकेडमिक्स एक अपनी आप में एक बहुत अच्छी पहचान है इसकी. और गोरखपुर सिटी में एक कॉलेज लोकेटेड है, अराउंड 160 एकड़ का इसका कैंपस है, बहुत ही बेहतरीन. और यहाँ बहुत अच्छा इस कॉलेज की एक बात है कि यहाँ UG कल्चर बहुत अच्छा है. यहाँ की फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, प्रॉपर आपको कॉलेज वाली फील आएगी यहाँ पे, ना कि आपको लगेगा कि लिटरली हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाली वाइब नहीं आएगी. मतलब बहुत ही अच्छा UG कल्चर है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ का हॉस्पिटल पूर्वांचल में सबसे बेहतरीन अगर हॉस्पिटल है कोई उत्तर प्रदेश टर्न UP में, तो वो है BRD मेडिकल कॉलेज. यहाँ लगभग 2000 बेड्स हैं, जो कि
500 बेड हमारे पीछे देख रहे हैं, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है। 500 बेड तो डेडिकेट किया गया केवल पीडियाट्रिक के लिए, और 1000 बेड है इसमें नॉर्मल मतलब मेडिसिन, और 200 बेड सुपर स्पेशलिटी में है। तो और ओपीडी की बात करें तो 4000 की ओपीडी डेली है इसकी। तो एक और सबसे यूनिक चीज़ इस कॉलेज के बारे में जो इसको सबसे मतलब अलग बनाती है पूरे यूपी में, वो है इसका रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। पूरे यूपी में इकलौता रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ICMR का केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, जिसमें आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हायर इंस्टीट्यूट में होती है, जैसे एम्स वगैरह में। तो ये वो आपको यहाँ मिल सकती है, आप यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिल सकती है अराउंड 60K के आसपास, और भी बहुत फैसिलिटी है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में। तो ये एक यूनिक चीज़ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। और ईस्टर्न यूपी का सबसे बैकबोन इसको कहा जाता है, मतलब जितनी मेडिकल ये पेशेंट लोड है इस पर, वो मतलब एक्सीलेंट है। उसके बाद ग्राउंड्स की बात करें तो एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, और एक हमारा कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे मतलब फेस्ट वगैरह होते हैं हमारे। फेस्ट की बात करें तो हमारा प्लेस मतलब बहुत ही बेहतरीन फेस्ट होता है हमारा, पूरे यूपी में जानते हैं लोग इसको। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो फेस्ट जिसको प्लेस बोलते हैं, हम लोग बहुत उसको एंजॉय करते हैं, और बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, आप वीडियो में देखेंगे अभी। तो उसमें मतलब कल्चरल होता है, गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह। तो बहुत ही अच्छा उसको हम एंजॉय करते हैं। और बाकी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये कैंपस दिख रहा है आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। मैं भी एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है यूनिकनेस बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। और आप आइए यहाँ पे पढ़िए बिल्कुल। कट ऑफ आप जानते हैं यूपी का लगभग 4th कॉलेज आता है ये, तो कट ऑफ बेसिस के अकॉर्डिंग होती है इसकी। थैंक यू। So hi everyone, my name is Saurabh Ocha and I'm a final year MBBS student at MLB Medical College Jhansi. So today I'm going to tell about some information about the college. So like college in 1965 में built है and around 350 acres में ये पूरा फैला हुआ है। बहुत ही पुराना कॉलेज यूपी का and इसकी रैंक अराउंड 8th या 9th पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो जितने भी कंसल्टेंट हैं प्रोफेसर्स हैं तो सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन यार अगर मैं एक्चुअल बताऊँ तो चाहे किसी भी कॉलेज की हम बात करें, ठीक है, तो टीचर्स हो चाहे कोई भी अच्छे टीचर हो प्रोफेसर हो, तो वो आपको कोई आके कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाता है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स यार पूरी आपको जो पढ़ना हो वो खुद से ही पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट सेकंड मैं बात करूँ अगर मैं जैसे आपके पेशेंट फ्लो की बात करूँ, ठीक है, तो बीइंग अ वेरी ओल्ड कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज है तो पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि बहुत इलाज बहुत सस्ता है यहाँ पे, राइट। तो पेशेंट वो अच्छा है, सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्लिनिकल डिपार्टमेंट कुछ है जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो यार लाइक यहाँ पे ऐसा है कि हर बैचेस को पर्टिकुलर फंक्शंस अलॉटेड है। लाइक द थर्ड ईयर स्टूडेंट जो मोस्टली एनुअल एंड स्पोर्ट फेस्ट आते हैं। स्पोर्ट फेस्ट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, इट्स अराउंड 8 to 9 days का होता है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स एंड जितने भी कल्चरल इवेंट्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, फैशन वॉक एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें होती हैं। जो अदर बैचेस है वो लाइक फंक्शन लाइक लोहरी करा दिया, या नेक्स्ट बैच में जन्माष्टमी कराया, किसी ने बसंत पंचमी कराया एंड ऑल दैट। तो इस तरह फंक्शंस डिवाइडेड है, तो फंक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। एंड हम बाकी कॉलेज के से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सब कॉलेज का अपना अपना एंड टॉकिंग अबाउट हॉस्टल, तो लाइक पहले MLB में लाइक फर्स्ट ईयर को डबल सीटर रूम मिलता था, लेकिन न्यू NC गाइडलाइंस अकॉर्डिंग अब फर्स्ट ईयर से सिंगल सीटर रूम अलॉट होता है। हॉस्टल में अराउंड 4 मेसेज है, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको खाना अच्छा लग रहा है वहाँ से खा सकते हैं एंड मेस का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। Hello everyone, my name is Ananya Pandey and I am a third year MBBS student at Government Medical College Ayodhya, which also goes by the name Rajarshi Dashrath Autonomous State Medical College Ayodhya. My college is 2019 established, which is relatively a newer college, but it has been growing rapidly in terms of infrastructure and academics. My college is located near Ayodhya Airport, which makes it very well connected to the city. It is very accessible. This is our main campus, जहाँ पे हमारे lecture theatres हैं, हमारी libraries हैं, clinical labs हैं, hostel है, mess है,
and our main clinical training hospital is 15 minutes away from our campus. It is located in Darshan Nagar, लेकिन उसके लिए हमारी bus facilities हैं which can make it very convenient for us to go for our clinical postings every day. When it comes to academics, our college offers a very well-structured program. The faculty is very knowledgeable, they are very approachable, they are very helpful, they are very supportive. There is regular lectures, there is regular clinical postings, and I think one of the strongest points about my college is that we have a footfall of more than 1,000 patients every day. So that gives us a very good clinical exposure. To be a great doctor, you need a good clinical exposure. Since you have a great footfall, you will learn about different diseases in the hospital. So it gives a good learning approach to us. Now the academics is not just restricted to the classroom. We also have a lot of NMO camps. We also have a lot of research opportunities, a lot of seminars. So if you want to grow, you will grow holistically in our college. When it comes to hostel, you are provided with a double-seater room. We have separate junior hostels and separate senior hostels, and the mess is also separate for junior hostels and senior hostels. Talking about the room, you are provided with your separate bed, your separate mattress, study table, chair and a cupboard. You are provided with fan, light, all those basic amenities. You will have 24 hours power supply and 24 hours water supply. But you will have to share your washrooms. We have common community washrooms. Talking about the campus, it is lush, green and it has modern infrastructure. We have lifts all around our campus. Our classrooms are air conditioned. We have a central library which is well equipped with all the books that we need for our curriculum, जहाँ से हम अपनी books issue करा सकते हैं to study multiple subjects. And then we have reading rooms जहाँ पे it is also air conditioned, so you can sit and study there for long hours. Apart from that, our college also provides good sports facilities. We have a cricket ground, a football ground, badminton courts, table tennis. So you will not just grow academically, you also have a lot of sports facilities around our campus. Beyond academics, our college also hosts a lot of cultural events, and there is also an annual fest organized in our college. The fest has a lot of programs such as sports events, literary events and clinical events. So it will give you a good recreational time. It is not very extravagant, it is not very lavish, but I think it is a good time to have a break from your routine. In short, I would say that my college offers a very balanced lifestyle considering sports, academics and clinical exposure. Comparing it with other 2019 colleges, since my college is very close to the capital city Lucknow, it is very accessible and it is also one of those politically influenced cities, so it is growing very rapidly in terms of infrastructure and academics. So I would say choosing a college, if the list is about 2019 colleges, my college would make a much better choice compared to the other colleges. Thank you. So hello friends, myself Prashant Kushwaha, a second year MBBS student at Rani Durgavati Medical College, Banda, formerly known as GMC Banda. Talking about the history of our college, my college was established in the year 2016. Our campus is very large, it acquires almost hundreds of acres of land. And also, talking about the city Banda. Banda as a city is very average. बहुत बड़ी city नहीं है और बहुत छोटी city है. हमारा जो कॉलेज है वो रेलवे स्टेशन और सिविल लाइंस बस स्टैंड से करीब 15 से 20 मिनट की दूरी पर है अगर आप ई रिक्शा से जाते हो, और मेन मार्केट जिसको हम महेश्वरी मार्केट कहते हैं वो हमारे यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है. और नॉर्मली जो आपके डेली बेस पे जो स्नैक्स और स्टफ होते हैं, आपके एसेंशियल्स होते हैं, उसको आपको लेना है तो आप कॉलेज गेट से ही ले सकते हो. यहाँ पर छोटी मोटी शॉप्स हैं आपके पास. टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स एंड हॉस्पिटल, हमारा कॉलेज 2016 से ऑपरेशनल है और इसने 9 से 10 बैचेस विटनेस कर लिए हैं, जिससे हमारे कॉलेज में एक स्टडी कल्चर, एक मेडिकल कल्चर डेवलप हो चुका है. हमारे कॉलेज से 3 से 4 बैचेस इंटर्नशिप पास आउट हो चुके हैं, जिससे हमारे कॉलेज में एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर अच्छा मिल चुका है हमारे कॉलेज को. अगर बात करें हॉस्पिटल की तो हमारे कैंपस में ही हमारा हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और बांदा के आसपास जो ज़िले हैं, हमीरपुर, जालौन, औरई और भी कई ज़िले हैं जहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो अच्छा खासा पेशेंट लोड भी मिलता है यहाँ पर. और हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं, ड्यूटी होती है, इंटर्नशिप के बॉस मैम हैं,
उनकी जो पोस्टिंग और ड्यूटी होती है सब कुछ इसी हॉस्पिटल में लगती है, जिससे हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको पता होगा बहुत सारे कॉलेजेस में बस और एम्बुलेंसेस के थ्रू पर डे उन्हें जाना ना पड़ता है। तो मतलब ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा हॉस्पिटल, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है हमारे कॉलेज के बारे में। फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है हमारे कॉलेज की और एक्सपीरियंसड है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। बात करें पीजी की, तो जैसे हमारा कॉलेज, इसमें पीजी की सीट्स भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि जनरल सब्जेक्ट, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्था, कम्युनिटी मेडिसिन, FMT, बहुत सारे मेजर एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स में हम लोग पीजी भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट होने से थोड़ा सा ये होता है कि हाँ एक कल्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है। और हमारे कॉलेज में जैसे 9,000 से 15-16,000 के बीच में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत डोमिनेंट ऑप्शन होता है GMC मार्केट। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे पर्क्स हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वो हमारा कैंपस के अंदर है। दूसरा, हमारा कॉलेज इतना आउटर में नहीं है, जिसे बहुत सारे ASMCs और जो हमारे लेवल के कॉलेजेस हैं उनके जो जैसे डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ बहुत सिटी में नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। तो मतलब ये कनेक्टिविटी का जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा कॉलेज की कनेक्टिविटी को जरूर देखिएगा। हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन का नाम इन्फिनिक्स में डांस, कल्चरल एक्टिविटीज, सिंगिंग सब कुछ होता है, स्पोर्ट्स होता है, कॉम्पिटिशन होते हैं, मैचेस होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब चीज़, MPL होता है। हमारे कॉलेज में बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है इन्फिनिक्स के दौरान। और हमारे कॉलेज में सिर्फ इन्फिनिक्स ही नहीं, बहुत सारे फंक्शंस, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हम हमारे कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट थिंग अबाउट माई कॉलेज, कि हमारा कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वो कैंपस के अंदर है। एक बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि फुल्ली AC है, फर्निश्ड है। और दूसरी बात कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़िया है। तो ये मेरे कॉलेज के बारे में जो था बेस्ट चीज़ें यही मुझे लगी। टॉकिंग अबाउट द बैड थिंग्स, द बैड पार्ट, जो चीज़ मुझे कम सही लगती है कॉलेज, मेरे कॉलेज के बारे में, या फिर कह सकते हैं जो मेरे कॉलेज के रैंक में जो कॉलेजेस हैं 8,000 से 16,000 के बीच में जो रैंक है, इन रैंक पे जो कॉलेज मिलते हैं उनकी जो सिटी होती है वो बहुत मेजर नहीं होती, एवरेज सिटी होती है। जैसे कि बांदा है, बहराइच है, शाहजहांपुर है। तो आप इन सब कॉलेजेस में आप कभी बहुत बड़ा सिटी नहीं पाओगे। तो सिटी कल्चर एक लैकिंग पॉइंट है यहाँ पर। बाकी कॉलेज बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अपनी कनेक्टिविटी देखिए और फिजिबिलिटी देखिए आने जाने की। बाकी कॉलेज इज बेस्ट। बांदा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अगर आप देखा जाए कट ऑफ के हिसाब से। सो दिस वाज माय पार्ट। थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर ज़्यादा जानना हो बांदा कॉलेज के बारे में तो आप YouTube पर GMC बांदा सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Hi you all, myself Nidhi, a third year MBBS student at ASMC Firozabad. This college was established in 2019. The campus is not that very large, but the infrastructure is pretty good. Situated 3 to 4 kilometers away from the main city at Firozabad Agra highway. Students can find all the basic needs nearby, and the closest market is just 15 minutes away from the college. And to go to the market, auto rickshaws are available anytime from the college gate. This college is attached to the district hospital SNMC Firozabad, which is situated in the main city, not in the college campus, 3 to 4 kilometers away from the college, for which college provide bus facilities for our clinical postings. The patient load is 1500 patients per day, which is pretty good for a clinical exposure. The level of academics in this college is good, and the faculties are passed out from great colleges like KGMC Lucknow, SNMC Agra, etc. and are very supportive. The strength of MBBS student here is 100 students in every batch. My college infrastructure is so good that all the events, parties like Freshers Party, cultural events like Republic Day, Independence Day, Vasant Panchami, Saraswati Puja, all are organized here only. If we talk about sports, then we have 2 badminton courts, a football ground, a volleyball ground, a playground for cricket, and a basketball court also. There are not much places to visit in Firozabad, but Agra is just 40 kilometers away, and many of us often visit there in our vacations, holidays, etc. Bus is always available at the bus stop, which is in the main city. Here in our college,
every cultural festival is celebrated with great enthusiasm. Along with it, we also celebrate Freshers Party for our juniors, annual sports, and annual cultural fest named Spandan. The best thing which I like about my college is that among all the SMCs of UP, this college is closest to the main city, and city like Agra is just 1 hour away. And the thing which I don't like about my college is that the hospital is not in the campus, and due to which हम posting जाना पसंद नहीं करते. So yeah, that's all about my college. I hope you guys will get your dream college, or if not, then you are welcome here. ये college मिले तो मिलना ज़रूर. Bye bye. हेलो एवरीवन, मैं हूं मधुर सागर उपाध्याय, MBBS स्टूडेंट यहाँ MBSMC बस्ती का। ये कॉलेज 2019 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका कैंपस साइज 17 एकड़ का है और पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ से मार्केट की दूरी करीब 12 किलोमीटर पड़ती है और हमारे कॉलेज से जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल यानी वो एक कैली हॉस्पिटल है, जिसको रीनेम करके 2019 में कॉलेज के नाम पर कर दिया गया, वो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। इसी दूरी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे हॉस्पिटल का डेली का पेशेंट लोड 1000 से भी ज़्यादा का है और हमारे कॉलेज में टोटल 28 PG सीट्स हैं। अकेडमिक्स के मामले में हमारा कॉलेज नया और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है और क्लिनिकल एक्सपोजर ओपेक हॉस्पिटल में बहुत अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी प्रॉमिसिंग एनवायरनमेंट है फॉर बिल्डिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। हमारे यहाँ फेस्ट बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पे कल्चरल नाइट्स, म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स अपना टैलेंट खुलकर दिखाते हैं। सेलेब परफॉर्मेंसेज और डीजे नाइट एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। खासकर हमारे मेडिकल कॉलेज में फेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत एक्सटेंसिव हैं। सीनियर बॉयज़ के लिए 6 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग सीनियर गर्ल्स के लिए और जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग। इसके अलावा हमारे कॉलेज में इंटर्न हॉस्टल और रेसिडेंट हॉस्टल्स भी हैं और फैकल्टीज़ के लिए टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड टाइप 6 बिल्डिंग्स हैं। हर कॉलेज की तरह हमारे कॉलेज के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो हमारा कॉलेज जो है वो मेन मार्केट एरिया से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं, पर यही इसकी खासियत भी है क्योंकि ये हमारे कॉलेज को काफ़ी पीसफुल और फोकस्ड एनवायरनमेंट देता है और वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर आप अपने मेडिकल करियर को अलग ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं तो वी वेलकम यू एट MBSMC बस्ती। So hello everyone, myself Saksham Chaurasia, a third year MBBS student from MPTMC Siddharth Nagar. And अगर बात करें मेरे कॉलेज के बारे में, so it is a 2021 established college and campus की बात करें तो campus is not that large but very well established campus है and very beautiful है। Even campus के अंदर एक मंदिर भी है जिसके बगल में हम लोग अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगर बात करें इस कॉलेज के एकेडमिक्स और फैकल्टीज़ के बारे में तो मैं कहूँगा कि एकेडमिक्स इज़ गुड, नॉट बेस्ट, नॉट वर्स्ट, बट इट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और अगर बात करें फैकल्टीज़ और प्रिंसिपल सर के बारे में तो दे आर वेरी सपोर्टिव इन एवरी मैटर, वेदर इट इज़ योर एकेडमिक्स, वेदर इट इज़ योर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फैसिलिटीज़। बस उनको आपकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, देन दे वुड श्योरली हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे। एंड अगर बात करें अपने हॉस्पिटल के बारे में तो हॉस्पिटल इज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हॉस्टल एंड द डेली पेशेंट लोड इन आवर हॉस्पिटल इज ग्रेटर देन 1000, जो कि हमें अपनी क्लिनिकल एक्सपोजर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए, जो कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज़ इन दिस कॉलेज, मैं कहूँगा हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर गुड हियर। अच्छे हॉस्टल्स हैं, वेल मेंटेन हॉस्टल्स हैं, क्लीनलीनेस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है एंड फर्स्ट ईयर में जूनियर्स को अलग हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू द नॉर्म्स ऑफ रैगिंग। बाकी सारे ईयर्स के स्टूडेंट्स एक ही हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेटली। मेस हमारे हॉस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है, क्वालिटी ऑफ फूड इज़ गुड देयर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन दिस कॉलेज तो हमारे कैंपस के अंदर ही वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी ग्राउंड और जिम प्रेजेंट है और बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए हमारे कॉलेज के बगल में ही डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम अवेलेबल है, तो वहाँ जाके हम लोग बाकी सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इवन हमारे हॉस्टल के जस्ट बगल में 2 स्विमिंग पूल भी प्रेजेंट है। सो अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो तो यू शुड श्योरली प्रेफर दिस कॉलेज। इफ आई टॉक अबाउट फेस्ट हियर देन वी सेलिब्रेट अ वेरी अमेजिंग एनुअल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट नोन एज इकाई, जो कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम लोग कई सारे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के टीम्स को इन्वाइट करते हैं फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट।
साथ में कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं लाइक डांस, सिंगिंग, ड्रामा, डीजे नाइट, फैशन वॉक, कॉन्सर्ट नाइट, एक्सेट्रा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिटी लाइफ ऑफ दिस कॉलेज, सो आई वुड से सिद्धार्थ नगर इज नॉट दैट बिग सिटी. कोई खास घूमने की जगह नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे. बट हाँ, कैंपस से 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे यूपी नेपाल बॉर्डर है. हम लोग अपने हॉलीडेज में अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं नेपाल. एंड इवन फर्स्ट ईयर में जो पहली कॉलेज ट्रिप होती है इस कॉलेज में, तो वो लुम्बिनी या भुटवल के लिए होती है. द बेस्ट थिंग विच आई पर्सनली लाइक अबाउट दिस कॉलेज इज द क्लोजनेस टू हॉस्पिटल एंड स्टेडियम. दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रेजेंट है एंड बहुत आसानी से हम लोग अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए जा सकते हैं एंड शाम को खेलने के लिए भी जा सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग विच आई पर्सनली लाइक अबाउट दिस कॉलेज इज द फेस्ट सेलिब्रेटेड हियर. इकाई, ये इतने बड़े लेवल का फेस्ट सेलिब्रेट होता है यहाँ पे. इवन कई सारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस भी इतने बड़े लेवल पे फेस्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते जितने बड़े लेवल पे यहाँ पे होता है. The thing which I personally don't like about this college is the city, Siddharth Nagar. Siddharth Nagar is not that big city. It is nowhere in comparison with big cities like Lucknow, Banaras और गोरखपुर. आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी बट अच्छी फैसिलिटीज़, एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह. सो एट द लास्ट मैं कहूँगा कि अगर आपको अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिल रहा है देन यू शुड डेफिनेटली चूज इट, because it is one of the fastest growing colleges among the new college and we are eager to welcome you here. So this brings us to the end of the series, and if you want the review of any other college, do let me know in the comment section below. I will try my best to cover that college in the next part of the video. If you find this video informative and helpful, do hit the like and subscribe button as it will help me keep going. And all the best for your NEET UG counseling. May you get the right medical college for you.